how much of energy we need nowadays. In the earlier times, before industrial revolution, we needed about 2000 kilocalories of energy per day. Normal human being needs 2000 kilocalorie of electricity, including for food, lighting, heating, cooking. So we had limited energy needs. Now, after industrial revolution, this demand has increased by about 100 times. We have domestic sector, we have industrial sector, we have transportation sector, we have lot of sectors where we use fossil fuels, where we use nuclear energy, and where we are also using wind energy, solar energy. These are the new forms of energy that we are using nowadays. We use energy for producing electricity also. Electricity is energy, we are using it daily, but electricity is also produced from some form of energy. Coal is a form of stored energy, and we heat that coal and we convert it into electricity using our thermal power plants. And a lot of our coal comes from other countries also. We import a lot of coal. So to reduce our dependence on fossil fuels like coal and petroleum, we have to think of the conservation of these resources, because these resources are very limited. These are non-renewable resources or exhaustible resources. So we have to shift to other resources in the near future. It takes around 3 kilowatt hour of heat to produce 1 kilowatt hour of electricity. The 1 kilowatt hour, the 1 unit of electricity that you see on your meter, that 1 unit of electricity consumed is produced from 3 kilowatt hour of heat that we get from burning of coal. We burn the coal in our thermal power plants, and it takes 3 kilowatt hour to produce 1 kilowatt hour of electricity. So it takes a lot of toll on our environment. We have to burn a lot of fuel, and that is why we have to see a lot of pollution, a lot of fly ash in the environment. A lot of fly ash is getting into the environment due to the burning of coal. Energy efficiency, ये one of the missions है हमारा of National Action Plan on Climate Change. हमारा 2008 में लॉन्च हुआ था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. उसके 8 मिशंस हैं. उन 8 मिशंस में से एक मिशन हमारा और है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. नेशनल लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज हो. और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज क्या है, जैसे कि आपने एलईडी बल्ब आपने यूज करना शुरू कर लिए हैं एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब जो है उनको आपने रिप्लेस कर लिया है. ठीक है, तो आप गीजर की जगह जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले गीजर, उसकी जगह सोलर वाटर गीजर यूज कर रहे हैं. तो दैट इज योर चॉइस. ये आप पढ़ाई से सीख रहे हैं या ऐसे भी सीख रहे हैं, एड्स आती रहती हैं टीवी पे. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड आ गया हमारा. 2007 में आया था ये, लेकिन 2017 में अभी ये और ज्यादा लाइमलाइट में आया, और ज्यादा अपडेशन इसमें हुई. अब क्या होता है कि बिल्डिंग कोड्स आते हैं. जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं उनको क्लियरेंस ही तभी मिलती है जब वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की गाइडलाइंस को पास करते हैं. मतलब आपके बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए. और एक हमने अभी बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा. ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है. इंडिया एंड फ्रांस जो है उन्होंने COP21 हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था हमारा 2015 में. तो 124 नेशंस इसमें अभी तक जुड़ चुके हैं. लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस क्लब इज US. यूनाइटेड स्टेट ने इसी साल ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. तो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन हमने कितना कम कर लिया. एलईडी बल्ब अभी जितने हमारी कंट्री में बिके हैं उसकी वजह से अभी तक हमने 314 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम कर लिया. उतना हमारे कोयले की डिमांड कम गई, उतने कम हमारे थर्मल पावर प्लांट चले, और हमने इतना जो है कोयला जो है बचा लिया. अपना कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट भी हमने कम कर लिया. देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगी कि ये प्रोग्राम्स हमारे सामने क्यों हो रहे हैं, हमें क्यों एनर्जी कंजर्वेशन का बताया जा रहा है. जब बात आती है क्रिटिसाइज करने की, तो हम सारे जो है गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं. जो ही विंटर्स आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी का कट है वो ज्यादा हो जाता है, और हम सारे गवर्नमेंट पे ब्लेम करने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती. लेकिन हम लोग इतना वो नहीं करते कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम किस लेवल का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम कौन सी चीजें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें एनर्जी जितने मिली क्या हम उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये चीज कोई नहीं देखता. इसलिए हमारे सामने ये प्रोग्राम्स होते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे. सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें कि गवर्नमेंट हमें बिजली नहीं दे रही है, गवर्नमेंट बिजली को प्राइवेटाइज कर रही है. जब ये बात आई तो बहुत सारे जो है वो क्रिटिसाइज करने लगे कि बिजली महंगी हो जाएगी. लेकिन सुमित सर, शायद मेरे हिसाब से शायद तभी हम जो है वैल्यू समझ पाएंगे एनर्जी की, तभी हम जो है एनर्जी कंजर्व करेंगे. एनर्जी कंजर्वेशन क्या है?
एनर्जी को कम इस्तेमाल करना और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। और वो शायद तभी पॉसिबल होगा जब एनर्जी प्राइवेटाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको हमने कंजर्व किया नहीं। हम वही लोग हैं जो घर में अगर हमारा मीटर ज्यादा तेज चलता है तो हम उसको तारों के साथ उससे खेल के उसको स्लो डाउन करवा देते हैं। हम वही लोग हैं जो कारपूल, जो सिर्फ अपने कुछ एक स्टैंडर्ड रखने के लिए 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जो है कॉलेज में बुलेट बाइक्स और गाड़ी लेके आते हैं, हालांकि आप पैदल भी आ सकते हैं। हम वही लोग हैं, और हम वही लोग हैं जो मतलब खुद करप्शन करते हैं और ब्लेम गवर्नमेंट को करते हैं। हम वही लोग हैं जो ये टूल टैक्स को बचाने के लिए गाड़ी को दूसरी साइड से लेके जाते हैं। हम क्या गवर्नमेंट को ब्लेम करें, हम क्या करप्शन पे बात करें। हम वही लोग हैं जब हम डॉक्टर की वहां पे बैठते हैं वेटिंग एरिया में, तो वहां पे वेट करने की जहमत नहीं करते, बल्कि रिसेप्शनिस्ट को 200 रुपीज देके हम अपनी टर्न लगवा देते हैं। हम वही लोग हैं। तो अगर हमें हिंदुस्तान को बदलना है, अगर हमें जितने भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े उनको अचीव करना है, तो पहले हमें चेंज होना है। क्योंकि 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप है। आप अपने अंदर की ये करप्शन को साफ कीजिए, मैं अपने अंदर की करप्शन को साफ करूंगी। आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करिए, मैं अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करूंगी। तब जाके हमारे जितने भी गोल्स है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है या कोई भी गोल है, तब जाके हम वो पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ 1 वे प्रोसेस रहेगा, हमारा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट का काम ना। सर यूं तो जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है फिर बार बार या सेमिनार कराने पड़ते हैं या कहीं पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि आप एनर्जी को जो है कंजर्व करें। आपको क्या लगता है सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी भी हम अपना जो टारगेट है एनर्जी कंजर्वेशन का उसको अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी हमारा ये एम जो हमारा जो ये चल ही रहा है, इस एम को जो हमने बनाए रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। और प्रोग्रेस तभी कर पाएगा जब वो सस्टेनेबल प्रोग्रेस होगी, मतलब जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई रिसोर्स बचा के छोड़ के जाएंगे। जैसे अगर हम ऑयल यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, अभी हम 70% से ज्यादा ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए और हम और रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाएं। जैसे हम चाहते हैं कि हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि सोलर एनर्जी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस हिली एरिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आसपास देखता हूं तो अभी सोलर एनर्जी पे कुछ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ जैसे सोलर वाटर हीटर, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कुछ लोगों ने सोलर वाटर हीटर यूज करना शुरू कर लिया हुआ है। और कुछ घर ऐसे मैक्सिमम जो 80% है उन्होंने अभी भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। हम देखते हैं यहाँ काफी बार लाइट खराब हो जाती है। स्नोफॉल के टाइम टावर्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से लाइट बंद रहती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सोलर इन्वर्टर पे शिफ्ट होना चाहिए, हमें सोलर वाटर हीटर पे शिफ्ट होना चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको पावर कट अगर फेस करने पड़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं पूरी कर पाएंगे अपनी। तो अगर वो सोलर इन्वर्टर का यूज करते हैं तो वो सब्सिडी पे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो हम उसमें अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेंगे। अब हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हमारी घर की जो लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स है और साथ में और जैसे हमारे घर में अप्लायंसेज चलते हैं, आजकल लैपटॉप चाहिए हमें पढ़ने के लिए, हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, हमारा और भी जो सिस्टम्स हमें ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए होते हैं, मोबाइल चार्ज करने हैं, या कोई कुछ लोग अपना काम करते हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपका यूट्यूब स्टूडियो है अपना, आपको वो एडिटिंग करनी है, तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, और आपका जो आप काम कर रहे हैं, आप इसी से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें उन नए मीन्स पे, और नए तो नहीं अब रहे ये, क्योंकि जितना अभी मीडिया, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा समझ लो ये भी चीज वायरल हो गई है कि हमें ये पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए और इसको यूज करना चाहिए। हमारी चाहे वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, चाहे हमारे वो लोग हैं जो अभी फॉर्मल एजुकेशन ना ले पाए हों, तो कभी भी बदलने के लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। जस्ट एक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं एजुकेटेड पर्सन, तो वही है कि जो उसने सीखा, जो बड़ों से सीखा, उनके एक्सपीरियंस से सीखा, उसको आप यूज कर पा रहे हैं, तो वही हमें करना चाहिए और हमें न्यू टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट करना चाहिए। सर हम अगर खाली डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें लोकल में, तो अगर यहाँ पर सबको पता है कि अगर हमें कमरे में नहीं है तो हमें लाइट वहाँ पे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि लाइट क्यों रखिए जला के, तो उनका आंसर ऐसे होता कि हम जो है बिजली का बिल भरते हैं, हम कौन सी फ्री ले रहे हैं, सरकार से हमारा चुनाव हमारा अपना है, हमें जो है बिजली यहीं से प्रोड्यूस होती है, तो हम क्यों ना जाया करें।
तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? चिनाब से जो पावर हमें जो मिल रही है ना, वो हमें कुछ परसेंट ही मिलती है ना, 100% तो आपका पैसा नहीं लगा इसमें। इसमें जो भी है NHPC का है, उनके पैसे हैं, तो हमें उससे कुछ परसेंटेज मिलता है, सारा नहीं मिलता है। तो जब भी और डैम्स बनेंगे, नो डाउट हमारा उसमें शेयर बढ़ेगा और हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी आने वाले समय में, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि डैम बनने में थोड़ा समय लगता है। तो कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे हमें हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो जितना आप ये यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उतना जो है डिमांड जाएगी। तो कोयला ज्यादा कंज्यूम होगा, कोयला ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे आप, तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो है डॉलर्स में हम पे करते हैं फॉरेन नेशंस को, तो हमारी जो टैक्स पेयर्स मनी है उसका वेस्टेज है। तो हम दोनों चीजें बचा सकते हैं, तो अपनी मनी भी बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, अगर हम कॉन्शियस डिसीजन लें कि हम जो है फॉसिल फ्यूल को घटाना चाहते हैं और जो रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके यूज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। सर, आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा कि इन सारी एनर्जीज को अगर हम बचाते हैं तो इससे जो है हमारे देश को क्या फायदा मिलेगा? हमारे देश को यही फायदा है कि हमारे जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन नेशंस फॉर द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल दिस कोल, तो हमें वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हम फ्री नेशन अभी हैं ही हैं, लेकिन हम और इकोनॉमिकली फ्री हो जाएंगे कि हमारे टैक्स पेयर्स मनी डॉलर्स में नहीं पे करना पड़ेगा किसी कंट्री को टू बाई सम रिसोर्स फ्रॉम दैट कंट्री। जैसे हमारा 70% ऑफ क्रूड ऑयल अभी भी बाहर के देशों से आता है और हमें वहाँ काफी पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, आने वाले समय में अभी हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स भी आने ही वाले हैं और वो ज्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी का सोल्यूशन है, उसके आगे का सोल्यूशन हाइड्रोजन ही है। क्योंकि अभी का सोल्यूशन, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप जा रहे हैं तो आपका बैटरी भी आएगी, उसमें बैटरी आपको रिसाइकल करवानी है, उसमें भी कुछ वेस्ट जनरेट होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जनरेट होगा ही। लेकिन जो आप हाइड्रोजन पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो काफी हद तक वेस्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं हम, नई गाइडलाइंस आने वाली है। अब हाइब्रिड कार्स जो इंजन है विद हाइब्रिड इंजन आने वाले हैं कि जो हमारे बायोफ्यूल पे भी चलेगी हमारी गाड़ी और हमारे नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल है उस पे भी चलेगी। तो ये फ्लेक्सी इंजन का कंसेप्ट आने वाला है, बहुत सारे देशों में ऑलरेडी चल रहा है, हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो वी विल गो फॉर दैट वेरी कार जो हमारी पैसे पे भी कम वजन डाले, मतलब पॉकेट सेविंग भी होनी चाहिए और एनवायरमेंट सेविंग भी होनी चाहिए। हमें उस टेक्नोलॉजी को जो है जल्द से जल्द अडॉप्ट करना पड़ेगा और आज की डेट में ये ईजी है। आप देखेंगे अगले 4-5 साल में एक इलेक्ट्रिक कार और एक डीजल कार या इलेक्ट्रिक पेट्रोल कार की कॉस्ट भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अब जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिथियम आयन बैटरीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है इस टाइम पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।